اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجیے۔ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، 200، 500، 1000 جو کر سکتے ہیں کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کی لگاتار گھٹیا حرکتیں سامنے آ رہی ہے۔ منیش سسودیا جو دلی کے نائب وزیر اعلیٰ ہے، ابھی آپ جانتے ہیں کہ سی بی آئی وغیرہ کا چھاپا پڑا ہوا ہے۔ آج منوج سسودیا نے سیدھا بی جے پی پر بڑا الزام لگایا ہے کہ مجھے 2 تحفے دینے کا بی جے پی نے لالچ دیا۔ پہلا تحفہ تو یہ کہ تم کو دلی کا وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، سی ایم بنا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ ای ڈی وی ڈی سب کاروائی بند ہو جائے گی، آپ پارٹی کو توڑ دو، بی جے پی میں آ جاؤ۔ منیش سسودیا نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت پریشان ہے، لیکن بی جے پی ہر جگہ دوسری جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پر جو جمہوری طریقے سے پارٹیاں جیتی ہوئی ہے، وہ جمہوری طریقے سے جیتی ہوئی پارٹیوں کو گرانا، ودھایکوں کو خریدنا، ان کو لالچ دینا یا پھر ان کو سی بی آئی اور ای ڈی کا ڈر دکھانا، اسی نیچ اور گھٹیا حرکت سے بی جے پی پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ اور آج منیش سسودیا دلی کے نائب وزیر اعلیٰ نے سیدھا کہا ہے کہ مجھ سے بی جے پی نے یہ کہا ہے کہ سی بی آئی، ای ڈی تو سب ہمارے اپنے ہیں، ساری کاروائی تم پر سے روک دی جائے گی، عام آدمی پارٹی کو توڑ دو، کیجریوال کو چھوڑ دو، بی جے پی میں آ جاؤ، دلی کے سی ایم بن جاؤ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے شاہنواز حسین کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ان پر ایک عورت نے باقاعدہ ریپ کا الزام لگایا ہے اور جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور پھر اس کو لے کر باقاعدہ شاہ نواز حسین سپریم کورٹ میں گئے تھے، لیکن شاہ نواز حسین بی جے پی کے قداور مسلم اکیلے یوں سمجھیے کہ نیتا ہیں، حالانکہ ابھی تو سائیڈ میں کر دیے گئے ہیں، مگر شاہ نواز حسین کو سپریم کورٹ نے بڑا آرام دے دیا، بڑی راحت دے دی۔ جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی۔ شاہ نواز حسین بی جے پی کے نیتا کو آرام مل گیا، اب ان پر یہ جو کاروائی کی جانے والی تھی نہیں ہوں گی۔ تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بی جے پی میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آخر دن گزشتہ کل دلی کے جنتر منتر پر کسانوں کی مہا پنچایت اور زبردست آندولن تھا۔
क्योंकि किसानों को जिस तरीके से मोदी जी ने लॉलीपॉप दिखाकर धोखा दिया, किसानों के अब समझ में आया, फिर वापस अब वो धरने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल जंतर मंतर पर जमा हुए थे और अब किसान महापंचायत में हुकूमत को 15 दिन की वार्निंग, 15 दिन का अल्टीमेटम किसानों ने दे दिया और ये कहा कि अगर हमारे डिमांड्स, हमारे मुतालबात, हमारी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि देखो यूपी के इलेक्शन है इसलिए तुम्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उठो मत, अपने मुतालबात मनवा कर ही उठो। मगर क्या करें, किसान भाई उस वक्त उड़ गए और फिर यूपी का इलेक्शन बीजेपी जीत गई, मोदी जी जीत गए। फिर इनके हाथ में क्या बोलते हो, बाबा जी का ठेंगा। इनके कोई वादे पूरे नहीं किए गए, लेकिन किसानों ने कहा कि ठीक है, हम किसान हैं, हम उगाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं, हम दोबारा फिर अपने हक के लिए डट जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त राजस्थान के मशहूर शहर टोंक से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। टोंक की 2 मस्जिदों में तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए जिसकी वजह से पूरा माहौल इलाके का ख़राब हो गया, हालात कशीदा हो गए। राजस्थान के सेंसिटिव हसास शहर टोंक में एक बार फिर फ़िरका वाराना कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इलाके की 2 मुख्तलिफ मसाजिद में तोड़फोड़ के इल्ज़ामात हैं। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले मुबैना गाय ज़बीहा के मामले में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन गुज़िश्ता कल से खबरें आ रही है कि 2 मस्जिदों में कुछ 100-150 लोग आए और मस्जिद को में तोड़ फोड़ की, जिसकी वजह से हालात कशीदा हुए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए तन मन धन सारी अच्छी बुरी सारी हरकतें पूरी कर रही है और हर तरह से कश्मीर को जीतने का ख्वाब बीजेपी का है। इसलिए बीजेपी ने बाकायदा अब बैरूनी लोगों को भी वोट डालने का हक जम्मू कश्मीर में दिया है। इसी को लेकर अब कश्मीर के जितने नेता हैं वो एक हो गए हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या अब्दुल्ला उमर हो, ये तमाम लोग एक हो गए हैं। और अभी खबरें आ रही है कि इन तमाम लोगों ने एक मीटिंग लेकर ये ऐलान किया कि कश्मीर में गैर मकामी लोगों को वोट का हक देना ये नाकाबिले कबूल है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कश्मीर में गैर मकामी लोगों को वोट का हक हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। और कश्मीर के तमाम लीडरों ने मिलकर ये कहा कि हम एक होकर इसका विरोध करेंगे, मुखालिफत करेंगे और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। आइए मुंबई से महाराष्ट्र असेंबली की 2 बड़ी खबरें हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने भेजी है। मुफ्ती अबू अयूब ने पहली खबर तो ये भेजा कि गुज़िश्ता कल इजलास का, असेंबली के इजलास का 3रा दिन था, ज़बरदस्त अंदाज में अपोजिशन ने हंगामा किया। आपको याद होगा पहले उन्होंने नारे लगाए थे तमाम बागियों और बंडखोरों को लेकर कि 50 खोके बाकी सब ओके। तो अभी नारा इन्होंने लगाया आले रे आले गद्दार आले, आले रे आले गद्दार आले, ऐसे नारे अपोजिशन ने लगाया और 3रे दिन भी असेंबली में जोरदार हंगामा किया। ऐसे ही दूसरी खबर आ रही है कि असेंबली में एक नाथ खड़से साहब ने, जो हमारे जलगांव के हैं मुक्ताई नगर के, उन्होंने एक नाथ खड़से साहब ने असेंबली में यह मुतालबा किया है कि अभी नौकरियों के सारे रास्ते मोदी जी की मेहरबानियों से, बीजेपी की मेहरबानियों से बंद हो चुके हैं और पढ़े लिखे नौजवान जो है जाहिर बात है कि वो अब आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक नाथ जी खड़से ने साफ तौर से असेंबली में ये मुतालबा किया है कि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बेरोजगार जवानों को 5,000 रुपये महीना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस किया जाए। आइए जमीयत उलमा महमूद मदनी यूनिट के महाराष्ट्र के सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब का बड़ा बयान इस वक्त आया है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में तकरीबन 1000 सद्भावना धर्म संसद लेंगे, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम लेंगे। वजह क्या है? उन्होंने कहा है कि इस वक्त धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का घटिया माहौल बनाया गया और घटिया हरकतें की गई। आप जानते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड और
जहाँ जहाँ धर्म संसद ली गई, धर्म संसद के नाम पर अधर्मियों ने और आतंकी बातें की और नफरतों का माहौल बनाया। तो इसलिए नदीम सिद्दीकी साहब जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के महमूद मद्दी साहब यूनिट के सदर मोहतरम का कहना है कि हम पूरे मुल्क में 1000 सद्भावना धर्म संसद लेंगे और नफरत फैलाने वाले अफराद और गुरोहों के जो जहरीले वायरस फैल गए हैं, हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मुल्क में अमन, एकता जमीयत उलमा का मिशन है। आइए ऐसी ही दो बड़ी खबरें राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आपने कई मरतबा खबरों में देखा होगा कि गुजरात में लगातार बड़े पैमाने पर ड्रग्स मिल रही है और जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मिला था गुजरात में वो किसके पोर्ट पर मिला था आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मगर क्या करें, वो तो फाइनेंसर हैं हमारे और वो तो बड़ा पैसा देते हैं हमें इलेक्शन में। तो आज तक यूँ समझिए कि वो मामला दबा दिया गया है और हमारे गोदी मीडिया के दलाल एंकरों ने उस पर भोंकने का हक अदा नहीं किया था, तो वो ड्रग्स का मामला भी दब गया। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात में लगातार ड्रग्स मिलने पर हुकूमत से तीखे सवाल किए हैं। वहीं पर खबरें आ रही है कि बाकायदा राहुल गांधी ने कांग्रेस के सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और भारत जोड़ो यात्रा में तमाम तबकात के लोग शामिल होंगे, ऐसा बयान कांग्रेस का आया है। आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस मुल्क से नफरतों की घटिया और नीच राजनीति को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा अभियान चला रही है, जिसमें हजारों किलोमीटर का 3500 किलोमीटर तवील यात्रा होगी और तकरीबन 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा, जी हाँ, इस वक्त भारत को तोड़ दिया गया है, तो कांग्रेस का कहना है कि हम जोड़ने के लिए काम करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने भी तोड़ने का काम किया था और मुल्क पर तोड़कर ही हुकूमत की थी। तो आज वैसे ही कुछ लोग घटिया हरकत अंग्रेजों की अपना रहे हैं और मुल्क में हिंदू मुसलमानों को तोड़ रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चलाएगी। आइए दिन बीजेपी में क्या होता है, इसकी एक बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना हैदराबाद से आ रही है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है कि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष, पूरे तेलंगाना के अध्यक्ष अमित शाह के जूते उठाकर दौड़े और पहनाने के लिए बिल्कुल पैरों के पास झुक कर जूतों को रख दिया। अब ये उनकी सोशल मीडिया पर बिंदी संजय कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग अंदाज में उस पर कमेंट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिकंदराबाद में वाक़े महाकाली मंदिर की है, जहाँ संजय यानी बीजेपी के तेलंगाना प्रेसिडेंट वज़ीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह के साथ बाहर निकले और उनके जूते उठाने के लिए दौड़े और फिर अमित शाह के सामने पहनने के लिए रख दिए। रियासत तेलंगाना में और बीजेपी में आखिर किस लेवल तक लोग गिर जाते हैं या गिरना पड़ता है, लोग ऐसे अल्फाज भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आसाम के सीएम वजीर आला ने हिदायत देते हुए, आदेश देते हुए आसाम के मुसलमानों से कहा कि अजनबी इमाम की इत्तला फौरन पुलिस स्टेशन में दी जाए। अलकायदा और अंसारुल्लाह से मुबैना तौर पर वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारियों के पेश नज़र उन्होंने ऐसी हिदायत दी है। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि आसाम में आधार एनआरसी लिंक 15 लाख अफराद राशन की सप्लाई से भी महरूम हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आसाम में कहीं ना कहीं मुस्लिम दुश्मनी का खुला सबूत सामने आ रहा है और अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बता रही है कि आसाम के वज़ीर आला वाज़ेह तौर पर खुल्लम खुल्ला मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।